Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Dravidian style of temple architecture. So this type of temple architecture represented the freestanding temples in South India, and it was the outcome of the gradual evolutions of the temple architecture through the stages of mainly that is the cave temples to the Rathas temple. So this type of temple architecture emerged originally under the Pallavas ruler. It evolved gradually under the Cholas and later the Vijayanagara rulers. So during the process of gradual evolutions from Pallavas to Cholas and from Cholas to Vijayanagara, there are the elements of continuity, that is some old elements are there, at the same time some new elements are also added in this element, that is in this architecture, that is a Dravidian form of temple architecture. So we will discuss each and every aspect in detail. So let's start. Now जो temples, that is the origin कैसे हुआ था, पल्लवा डायनेस्टी से. So it can be classified into the 4 stages chronologically. Now the first is the Mahendra group. It was under the अंडर द महेंद्र वर्मन. सो ये जो टेम्पल्स इस टाइम पे थे, इट वॉज द बेसिक रॉक कट टेम्पल्स. ठीक है, कोई भी एक नेचुरल रॉक से उसको कट करके मीन्स उसको टेम्पल का एक शेप दिया जाता था. दिस टाइप ऑफ सम एलिमेंट, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर इज देयर, दैट इज द केव टेम्पल्स. ओके, और इस जो केव टेम्पल्स को होते थे, इसको मंडप्स कहते थे. नो डोंट इक्वेट द मंडप्स विद द नगरा मंडप्स, बिकॉज नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो मंडप्स हैं उसको कहते थे हम असेंबली हॉल. और उसका क्या पर्पस था, बेसिकली वहाँ पे असेंबल होना लार्ज नंबर्स ऑफ डिवोटीज. ओके, तो यहाँ पे इसको हम मंडप्स कहेंगे. नाउ सेकंड इज द नरसिम्हा ग्रुप. ठीक है, सो इट वाज अंडर द नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, और इसका जो टाइम पीरियड दैट इज द 7th century AD. अब जो इस टाइम जो मंडप्स थे, नाउ अंडर दिस जो मंडप्स थे, इट वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू सेपरेट रथास. जो बिगेस्ट रथ था उसको हम कहेंगे धर्मराज रथ, एंड जो स्मॉलेस्ट था दैट इज द द्रौपदी रथ. अच्छा, जो यहाँ से दैट इज तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, इज अ सक्सेसर ऑफ द धर्मराज रथ. जो धर्मराज रथ के बाद जो भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ उसको वो प्रॉपर एक द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हुआ. अच्छा, जो यहाँ पे जो रथ है, इट द रथ डज नॉट मीन अ चैरियट. ठीक है, तो आप डोंट इक्वेट दी रथास विद द चैरियट, दैट इज द ओरिजिनल चैरियट. व्हाई इट इज बिकॉज, अच्छा ये जो चैरियट का है, इट मीन्स और ये इंडिकेट है दैट इज अ प्रोसेशंस फॉर्म अ टेम्पल स्ट्रक्चर. इट अपीयर्स दैट द रथ टेम्पल कैन मूव, बट इन रियलिटी ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज दीज आर कट आउट ऑफ द रॉक्स. ओके, now basically there are the mainly 8 rathas temple that was built under the reign of the Narasimha Varmana first, and these all are built in the places that is the Mahabalipuram. Okay, and what are these rathas temple? Look, that is the Dharmaraj Rath, Draupadi. Dharmaraj are the largest. ठीक है, भी हमने देखा है. These are the largest rathas, and the Draupadi are the smallest rathas. Another is Arjun Rath, Bhim Rath, Nakul Sahadev Rath, Ganesh Rath, Pindari Rath, and the Valyan Kuntai Rath. So कुछ जो इसका architecture है, it was similar to this. These are the rathas. After Mahendra Group and Narasimha Group, जो later Pallavas of style of temple architecture, and further subdivided into 2 types. First is the Rajsimha style, 8th century AD, and the Nandivarmana style of 9th century AD. So let us discuss in detail. So Rajsimha group जो style है of the temple architectures, it's reflected the third phase of temple architecture under Pallavas, और जो इसका जो मेन जो रूलर थे that is the Rajsimha Varmana. Under the Rajsimha Varmana, also known as the King Narasimha Varmana II. So in this time, freestanding temples began to be constructed,
एंड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फर्दर एमर्ज्ड. ठीक है, दैट इज द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल. सो ये माइट पोटेंशियल क्वेश्चन है कि फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स अंडर पल्लवा जो है स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स किसके अंडर में एमर्ज हुए थे. दैट इज द नरसिम्हा वर्मन सेकेंड और राजसिम्हा वर्मन फ्री स्टैंडिंग टेम्पल. ना यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. सो ये जो टेम्पल्स है इसका जो मटेरियल्स यूज हुआ है दैट इज द स्टोन, ब्रिक्स एंड दिस टाइम अनलाइक द नगरा यहाँ पे मेटल भी यूज़ हुआ है टेम्पल में. नगरा में मेटल्स यूज़ नहीं हुआ है. नौ जो इसका विमाना है, नौ द देयर वाज एन जो इसका विमाना है दैट वाज अ टिपिकल फीचर ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. और जो इसका जो शेप है दैट इज द पिरामिडिकल इन शेप. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द पिरामिडिकल इन शेप. ओके, नाउ ये जो विदाउट जगती दैट इज ये जो टेम्पल्स हैं इट वाज बिल्ड विदाउट एनी रेस प्लेटफॉर्म्स. इसका जो मेनली जो ग्राउंड लेवल है दैट वाज द वेरी लो एंड देर इज नो सॉर्ट ऑफ एनी रेस लेवल इज देयर जिसपे मेन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ट है. नाउ द इंटीरियर वॉल्स, नाउ द इंटीरियर वॉल्स ऑफ द गर्भगृह आर हाईली डेकोरेटेड. ओके, these are highly decorated and this decoration was carried out with the help of various images along with the other designs. Now let's see some examples. The examples of these style of temple architecture are the Kailashnath temple. It was located in the Kanchipuram. So इसकी locations काफ़ी important है. अगर if you know any further information about the same, please Google it out. Okay, but इसकी locations काफ़ी important है. So it might be possible directly ask in the mains the following types of questions. Second is the Vaikunth Perumal temple. It's also located in the Kanchipuram. Okay, there is the Kailashnath temple and this is the Kanchipuram temple. Okay, next is the Shore temple at the Mahabalipuram. These are the finest example. Okay, next is the Nandivarmana group and that was in the 9th century AD. 9th century AD and it was the fourth and the last stage of the temple of this temple architecture under the Pallavas. So what will happen? So ये जो Nandivarmana style of temple है it was smaller in size in comparison to the earlier ग्रुप्स. ठीक है, अब ये स्मॉलर साइज क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? इट्स रिफ्लेक्ट द डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ द पल्लवा पावर. दैट इज द डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ पल्लवा पावर. डिक्लाइनिंग पल्लवा पावर. नाउ पल्लवास वर नो लॉन्गर वेरी पावरफुल इन द 9th century AD और जो अराउंड द मिडल ऑफ द 9th century इट वॉज ओवरथ्रोन बाई द चोलास. ओके, चोलास was overthrown by the Cholas. अच्छा, हम इसका जो नंदीवर्मन ग्रुप का है इसका एग्जाम्पल क्या है? क्रिटिकल एग्जाम्पल है दैट वाज द मुक्तेश्वरा एट द मलंगेश्वरा टेम्पल कांचीपुरम. इट वाज आल्सो लोकेटेड इन कांचीपुरम एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सेम. नाउ एज पर द पर्सी ब्राउन द Pallavas style of temple architecture are divided into 4 phases. So we will try to represent with the help of graph. Now the first is the Mahendravarman phase. Okay, Mahendravarman फर्स्ट और इनका जो टाइम पीरियड है 610 to 642 AD. और जो महेंद्र ग्रुप में जो टेम्पल्स बने थे दैट वाज मेनली केव टेम्पल. सेकेंड फेज इज नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट. जो इनका टाइम पीरियड है दैट इज 642 to 674. और जो इनके अंदर में टेम्पल्स जो बने थे दैट इज दी ममला स्टाइल्स और along with the cave temples plus Ratha's temple. Okay, now the third one is the Narasimha Varman second. और इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज द 8th century AD. और जो इनके अंडर में जो टेम्पल्स बने थे दैट इज द राजसिम्हा स्टाइल. और इसके जो एलिमेंट्स थे दैट इज द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल
और यही जो था आपका दैट इज जो बेसिक स्ट्रक्चर और जो रियल स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल दैट इज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर एमर्ज्ड अंडर द राजसिम्हा ग्रुप ऑफ temple architecture. The fourth and the last phase is the Nandi Varmana style. That is the Nandi Varmana, and it was in the 9th century AD. और यहाँ पे जो elements है that was represented by the smaller size of temple architecture. It represented the declining phase of the Pallavas. Okay, so in this way we can represent the 4 phases of the temple architecture as per the categorized by the Percy Brown. Okay, next is the evolution of Dravidian style of temple architecture under the Cholas, and it was mostly mainly in the 10th to 11th century AD. So under Cholas, Cholas were the great patrons of art and architecture. So under the patronage, the Dravidian style of temple architecture reached its zenith, that is, it reached its climax. Okay, so it was considered that more than 2,300 plus temples were built under the Chola periods. Okay, so let's see what are the distinct features of the Dravidian style of temple architecture under the Cholas. Okay, so first of all, the presence of the high boundary walls. So जो हमने नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखा था, देर आर मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर एब्सेंस, उसमें नहीं था हाई बाउंड्री वॉल्स, बट ये जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इट वॉज सराउंडेड बाई एन हाई बाउंड्री वॉल्स. सेकेंड इज जो इसका फ्रंट वॉल है हैड हाई एंट्रेंस गेटवे. ठीक है, जिसका जो गेटवे है मोस्ट एम्फेसाइज है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है फ्रंट वॉल, हाई एंट्रेंस गेटवे, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ दी गोपुरम. अच्छा, और ये जो आपका जो टेम्पल प्रीमाइसेस है इट वॉज लेड आउट इन दी पंचायतन स्टाइल. और जो पंचायतन स्टाइल में क्या होता है, विद द प्रिंसिपल जो मेन टीटी है इट वॉज इन दी सेंट्रल एंड द 4 सब्सिडरी श्रेण्स आर अपोजिट टू ईच अदर. तो बेसिकली आउट क्या होता है, दैट इज़ द मेन टीटी और जो इसका 4 सब्सिडरी श्रेण्स है दैट वॉज opposite to each other. That was the Panchayatan style of temple architecture. जो another element है that is the Vimana. अच्छा, जो द्रविडियन स्टाइल है जो spires है in the forms of the step, the pyramidal that rises up linearly rather than curved, it is known as the Vimana. ठीक है, तो जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में उसमें देखा था कि कर्व्ड एलिमेंट है, लेकिन अनलाइक नगरा जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है ये स्टेप लाइक पिरामिड है और इट वॉज इन द लीनियर और द स्ट्रेट लाइन. ओके, so that was the distinct elements of the Dravidian style of temple architecture. और बेसिकली जो विमाना है दैट इज इट सिम्बलाइजेस, ये सिम्बलाइजेस करता है जितना बड़ा विमाना होगा दैट इज, और वो सिम्बलाइज करेगा द प्रेस्टीज ऑफ द किंग, दैट इज शोज द, इट वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू द पावर एज वेल एज द प्रेस्टीज ऑफ द किंग. ठीक है, जितने से बड़ा जो विमान बढ़ाएंगे तो means it shows that the king is the supreme or the king is the powerful authority. ठीक है, और एक क्रिटिकल एग्जाम्पल है इसका दैट इज़ द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. और जो इसका जो विमाना है इट वॉज 66 मीटर इन देयर हाइट, 66 मीटर, दैट वॉज ह्यूज. नाउ अनदर एलिमेंट इज दैट इज़ द शिखरा. ठीक है, और जो शिखरा है ये क्राउनिंग एलिमेंट है, इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्टागोन एंड इज नोन एज द शिखरा. अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्टागोनल एलिमेंट आ गया, ऑक्टागोन. अनलाइक नगरा स्टाइल में कैसा था, दैट इज इन, और जो नगरा स्टाइल में कैसा था दैट इज इन स्फेरिकल इन शेप. तो यहाँ पे स्फेरिकल नहीं, यहाँ पे एक ऑक्टागोनल शिखरा होगा. नाउ दिस टाइम ओनली वन विमाना इन द सेंस जो पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, सो वन मेन श्राइन एंड द 4 सब्सिडरी श्राइन्स उसमें भी विमाना होते थे. लेकिन इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देर इज़ ओनली वन विमाना जो कि मेन मीन्स जो आपका मेन गर्भागृह है और जो मेन डीटी का प्लेस है वहीं पे होगा. जो सब्सिडरी श्राइन्स है डज नॉट हैव एनी विमानास, जो कि एक क्रिटिकल एलिमेंट है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वो द्रविडियन में एब्सेंस है. ओके, नाउ देर इज व्हाट इज द अंतराल. सो अंतराल क्या है, एक असेंबली हॉल है दैट वाज कनेक्टेड विद द गर्भागृह बाय अ वेस्टिब्यूलर टनल. सो एक सम साइड ऑफ टनल है, उसको हम अंतराल कहेंगे. ओके, द नेक्स्ट इज तो गर्भागृह स्कल्प्टेड. अब यहाँ पे स्कल्पचर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है. जो एंट्रेंस है ऑफ द गर्भागृह इज हाईली स्कल्प्टेड और डेकोरेटेड, और जो उसमें एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं दैट इज द द्वारपाल, images of Mithun as well as the yakshas. Okay, as well as the other elements are also there. एक
डिस्टिंक्ट एलिमेंट है that was uniquely feature of the Dravidian style of temple architecture, that is the presence of water tank inside the temple enclosure. ओके, तो एक वाटर टैंक भी होगा उसमें. एक लेआउट देख लेते हैं, दैट इज द ग्राउंड लेआउट. अच्छा, ये विमाना हो गया. ठीक है, विमाना क्या होगा, जितना बड़ा विमाना होगा, इट शोज द पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द किंग. ओके, ये गर्भगृह हो गया, द मेन सीट ऑफ द डीटी. ये वाटर टैंक हो गया, उसका मेन पर्पस क्या होता है, दैट इज टू प्रोवाइड द सेक्रेड वाटर टू द डिवोटीज. ये पंचायतन स्टाइल में ये मेन आपका गर्भगृह हो गया. ये 4 सब्सिडरी श्रेणियाँ हो गई. अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मेन जो गर्भगृह उसी में विमाना होगा, सब्सिडरी श्रेणियों में विमान नहीं होगा. ये अंतराल हो गया, दैट इज द वेस्टिबुलर टनल है, एक टनल गर्भगृह में पहुंचने के लिए. और जो ये जो है दैट इज ये असेंबली हॉल हो गया, इन ऑर्डर टू बेसिकली यहाँ पे गैदर होंगे डिवोटीज, लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज. और ये गोपुरम हो गया, और गोपुरम क्या है, दैट इज द गेटवे. ओके, सो दिस वॉज द बेसिक लेआउट ऑफ द that was the basic layout of the Dravidian style of temple architecture. Okay, now basically ये जो चोला style of temple architecture है, it was इस बारे में कमेंट किया गया है by the various historians, among them the prominent are the Ferguson. Now he commented that the Chola artists are, that is the conceived of vision of planned like, जो ये temples हैं, it was planned like giants because these temples are massive in their sizes. At the same times it was finished, जो इसकी फिनिशिंग है, it was finished like jewelers because each and every minute details पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है और उसको डेकोरेटेड पीस ऑफ एज ए मीन्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर के तौर पे एक उसको मीन्स काफ़ी उस पर अच्छे से वर्क किया गया, उसमें एम्फसाइज किया गया है. ना अकॉर्डिंग टू द पर्सी ब्राउन, जो तेंजोर विमाना है, दैट इज़ द बृहदेश्वरा टेम्पल, जो हमने देखा था विमाना, उसका सबसे बड़ा था, वॉज द 66 मीटर इन देयर हाइट. सो बृहदेश्वरा टेम्पल इज द टच स्टोन ऑफ द, that was the keystone, that was the prominent element of the Indian architecture, or the touchstone of not only the Dravidian style of temple architecture that is prevalent in the southern India, but whole of the Indian architecture. It was the most beautiful as per the Percy Brown. So these kind of statement might be possible directly asked in the examination. So please, if possible, try to remember the same. Now this time what will, अब क्या हुआ इस टाइम में, so there are number of additional और subsidiary structures और built हुए near the main structure में. So as a result क्या हो गया, so एक जो result जो temple है, उन्होंने एक complex form attain कर ली. अब वो क्यों हुआ, additional structures क्यों हुए, so जब जो इसमें था, whenever the king used to return from the successful military campaign, एन एडिशनल स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट. अब ये एडिशनल स्ट्रक्चर जब बिल्ट हुआ तो एक उसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो गया. लेट्स से आई विल ट्राई टू, ये मेन टेम्पल है, अब कोई किंग एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे गया और उनकी विक्ट्री में एक और एलिमेंट आ गया, एक और सब्सिडरी एलिमेंट स्ट्रक्चर ऐड हो गया. ठीक है, तो ये एडिशनल स्ट्रक्चर ऐड होते होते इसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे एक ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन इसका. अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन तो हो रहा है, इट वॉज इंडिकेटेड वन इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द टेरिटोरियल एक्सपेंशन एज वेल, बिकॉज जब किंग एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन से आएंगे तभी उसको एक ऐड होगा, तो शोज द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट. ओके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट. नाउ the evolution of, another is the evolution of the Dravidian style of temple architecture under the Vijayanagara rulers. So ये जो है style of temple architectures, it was later influenced the Indo-Islamic style of temple architecture, especially the Bijapur. Now there are the certain another elements, new elements added under them, and these are the Amashrin. अब ये क्या है? Now ये जो Amashrin है, so इसमें it was built for the chief goddess. Okay, it was built for the main goddess, that is the chief goddess, because he started living separately this time. अब वो separate रहेंगे, that is why the Amashrin उसको एक element add किया गया. Now for the ceremonial or the gathering or the meeting of the गर्भगृह, जो मेन that is जो मेन चीफ डीटी है as well as the goddess, another structure एक और element किया गया, that is the कल्याण मंडपा. और ये जो इसमें क्या होगा, ये जो ड्यूरिंग द महानवमी फेस्टिवल द इमेजेस ऑफ द चीफ गॉड एंड द चीफ गॉडेसेस carried to the Kalyan Mandapa on the beginning of the Mahanami festival. On the last day of the festival, the images was brought back to their respective structures.
अब जो चीफ डीटी हैं उनको हमने एक अलग सेपरेट दे दिया प्लेस, दैट इज़ द मशरिन, और एक जो अदर डीटीज हैं उनको कल्याण मंडपा में। अच्छा, जो इन दोनों ये दोनों कब आएंगे एक साथ, दैट इज़ द महानवमी फेस्टिवल में, और जो लास्ट डे होगा ये फिर अपनी अपनी जगह पे रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर में जो भी है इनका दैट इज चले जाएंगे। अनदर एलिमेंट इज द 1000 पिलर्ड हॉल, दैट इज द 1000 pillared hall known as the Vasant Mandapa was also built in the temple complex, और इसका क्या पर्पस था, दैट इज फॉर द गैदरिंग, दैट इज फॉर द गैदरिंग ऑफ डिवोटीज की गैदरिंग के लिए। ओके, अनदर एलिमेंट इज द राया गोपुरम। अब जो गेटवेज थे जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के, इट बिकेम्स मैसिव इन साइज, और यहाँ पे हम उसको गोपुरम की जगह हम उसको कहने लगे था गोपुरम, और इट वॉज बेसिकली ये बनने लगे ऑन दी ऑल साइड्स ऑफ द टेम्पल। ठीक है, अब जो इंक्लोजिंग वॉल्स थी जो कि एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट था द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, नाउ दिस वॉल्स आर बिकेम मोर लॉन्गर। ओके, और जो देयर वाज मोर एम्फेसिस गिवन ऑन द डेकोरेशंस ऑफ द टेम्पल वॉल्स, बोथ द इंटीरियर एज वेल एज द एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल्स। ओके, नाउ ये जो विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर रही है, ये इसको एक कॉन्सेप्ट देता है ऑफ द सेकुलर बिल्डिंग इनसाइड द टेम्पल प्रिमाइसेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। देयर आर द सम prominent examples, and among them are the Virupaksha temple, it was under the Vijayanagara Empire. Okay, another is the Hazara temple, it was also related to the Vijayanagara style of temple architecture. Now there are the two phases of the temple architecture. So in the second phase of the evolution of the temple architecture in the Vijayanagara Empire, now ये जो style of temple architecture है, it emerged ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, और इसको हम नायका स्टाइल भी कहते हैं, ऑफ द नायका स्टाइल और द मदुरई स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नाउ यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ये जो है यहाँ पे जो ऑल सिमिलर है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पे, पर जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इट वॉज लार्जर अगर हम कंपेयर करेंगे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो उसके एलिमेंट्स हैं दे आर द सिमिलर टू द द्रविडियन, बट येस लार्जर इन देयर आस्पेक्ट्स और देयर साइज। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जो नायकास थे, सो बेसिकली जो नायकास थे दैट इज दीज आर द सीनियर मिलिट्री कमांडर। अब ये कौन थे, दैट इज द सीनियर मिलिट्री कमांडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो दे वर अपॉइंटेड एज ए प्रोविंशियल गवर्नर, उनको प्रोविंशियल गवर्नर की तरह अपॉइंट किया जाता था। कहाँ पे, इन द पेरिफेरियल आउटलाइन एरियाज ऑफ द एम्पायर। जैसे ये एक एम्पायर है जहाँ पे विजयनगर जो मेन रूलर है वो रूल करेंगे, और जो उसके आसपास का जो एरिया है दैट इज उनके लिए गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर को अपॉइंट करेंगे, उनको हम नायकास कहेंगे। और ये मिलिट्री कमांड, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स दैट इज जो लॉयल और बेसिकली वो ट्रस्टवर्दी होते थे। अच्छा, एक अदर एलिमेंट है दैट इज दे यूज टू एंजॉय द हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। जो नायकास थे बेसिकली दे आर वर्क एज ए ऑटोनॉमस, क्योंकि वो ग्रेट हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंजॉय करते थे। दे यूज टू हैव देयर ओन कोड्स, उनका आर्मी होता था, ऑफिशियल होता था, एज वेल एज देयर ओन कॉइनेज सिस्टम। ओके, सो काफ़ी मीन्स जो डायरेक्टली जो किंग का इन्फ्लुएंस था बहुत कम था। जो नायकास वर अंडर द नॉमिनल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज द किंग। नाउ व्हेन द विजयनगरा दैट इज द लॉस्ट द बैटल of the Banibhat, that is the Rakshasa Tarigaddi or the Battle of Talikota in the 1565 to the alliance of the four Deccan Muslim state, that is the Ahmednagar, Bijapur, Golconda and the Bedar. What will happen? अब जब डिफीट हो गया और द डिक्लाइन हो गया विजयनगरा इन दिस बैटल में, इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। एक तो पहले से ही बहुत ही नॉमिनल कंट्रोल था, अब ये और हमें विजयनगर डिफीट हो गया ड्यू टू द फोर अलायंस ऑफ द फोर डेक्कन मुस्लिम स्टेट्स, उसकी जो अथॉरिटी है फर्दर इरोड हो गई, एंड ड्यू टू विच द नायका बिकेम्स द मच मोर पावरफुल, एंड नाउ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ नायका रूलर्स नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एमर्ज्ड, और उसको वाज आल्सो नोन एज द मदुरई स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स? सो इसमें जो देयर वाज द आर्किटेक्चर सिमिलर है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, बट दीज आर द लार्जर इन इट्स स्कोप। ओके, another is और at the same time the intricate carving, because अब उस मोर डेकोरेशन पे काफ़ी उसको फोकस किया अंदर द नायका स्टाइल ऑफ आपका नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। एट द सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ प्राक्रंस और द ह्यूज कॉरिडोर्स इन द पोर्टिको, ठीक है, पोर्टिको वॉज देयर
portico around the Garbhagriha. Now this time along with the roofed ambulatory passageway are the one of the unique features. ठीक है, the presence of the huge corridors or in the portico around the Garbhagriha. अब ये गर्भगृह है और हमने पोर्टिको क्या देखा था, बेसिकली एनी ऑफ द मीन्स जो भी उसका जो छत है इट वॉज सपोर्टेड बाई द पिलर्स. तो ये एक बेसिक है, दैट इज द पोर्टिको. और ये क्या हो गया, अलॉन्ग विद द रूफ्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे, ये रूफ्ड है और इसके अंदर दैट इज एम्बुलेटरी पैसेजवे है. आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ओके, नाउ जो गोपुरम्स हैं, द गोपुरम्स बिल्ड अंडर द नायका रूलर्स वर सम ऑफ द टालेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड. और जो मीनाक्षी टेम्पल ऑफ द मदुरई है दैट इज द 17th सेंचुरी, ये एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है. ओके, नाउ जो मीनाक्षी टेम्पल ऑफ द मदुरई इट वॉज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी. ठीक है, बाय द रूलर्स कुलशेखर पांड्या, दैट इज द Pandya, कुलशेखर पांड्या. नाउ इट हैज टू सेपरेट स्टोरीज, जो कि टू सेपरेट स्टोरीज हैं. वन इज डिवोटेड टू दी शिवा एंड द अनदर इज डिवोटेड टू दी पार्वती. ओके, और इसका जो गोपुरम है इट वॉज द टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड. इट वॉज द टॉलेस्ट गोपुरम इन द एंटायर वर्ल्ड. ओके, अच्छा, जो अब यही है बेसिकली जो इसका आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द गोपुरम रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द नायका एज. और द मीनाक्षी टेम्पल ऑफ द मदुरई इट वॉज बिल्ट बाय द कुलशेखर टेम्पल इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल. ओके, नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स zenith अंडर द पल्लवा रूलर नंदीवर्मन. Reached is zenith under the Pallava ruler Nandivarmana. That is, it talks about the fourth stage of Pallava architecture, temple architecture. Second statement says that during Vijayanagara period, a number of the new dimensions such as the Amma Shring and the Kalyan Mandapa was added to the Dravidian style of temple architecture. So in order to attend this question, please pause this video screen and write your answer in the comment section below. So let's choose the correct answer. So there are the options: A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 and 2. So first statement is wrong because fourth stages what will happen. So क्या था basically जो नंदी वर्मा, now जो इस time जो temples थे these are the smaller in size in comparison to the their earlier जो groups हैं. तो it shows that the Pallava powers are in declining phase. By the 9th century, by the middle of the 9th century, it was taken by the Cholas. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो अमा श्रीन है दैट इज जो चीफ डीटी के लिए एक सेपरेट प्लेस बनाया गया था और जो कल्याण मंडपा है वो अदर गॉडेसेस के लिए. ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.